friend, today we discuss the surface chemistry topic catalysis. There are many substances which increase the rate of chemical reaction. These for increase the rate of reaction. For example, when potassium chlorate decomposes at the ordinary condition, it take more time. But when we use a small amount of foreign substance MnO2, the rate of reaction increase. In potassium chlorate KClO3 heated 673 Kelvin to 873 Kelvin, it decomposes KCl plus oxygen gas. But when we use a small amount of MnO2, the rate of reaction increase and temperature become low. KClO3 the temperature range 473 Kelvin to 633 Kelvin. In this reaction, temperature and rate of reaction increase when we use a small amount of MnO2. MnO2 is a foreign substance which speed up the rate of reaction. Berzelius studied the many reactions and foreign substance. He named the catalyst for foreign substance. Foreign substance को catalyst का नाम दिया. बर्जिलियस ने catalyst की define catalyst a substance which increase the rate of reaction without consuming in it at the end of chemical reaction, and catalyst never consume in a chemical reaction. Chemical reaction में कभी भी consume नहीं होते हैं. तो catalysis क्या हो जाएगी? The phenomena to increase the rate of reaction by using a catalyst is called catalysis. Catalysis two type: positive catalysis, negative catalysis. Positive catalysis when a catalyst increase the rate of reaction, the catalyst is positive catalyst and this phenomena is positive catalysis. When a catalyst increase the rate of reaction, catalyst is positive catalyst and this phenomena is positive catalysis. Example, when we use sulfur dioxide gas and oxygen gas in presence of V2O5 vanadium pentoxide, it increase the rate of chemical reaction. Chemical reaction के रेट को बढ़ा देता है and this phenomena is catalysis. Negative catalysis when a catalyst decrease the rate of chemical reaction is called negative catalyst and this phenomena is called negative catalysis. Example, when decomposition of hydrogen peroxide in presence of phosphoric acid H3PO4, it decompose water and oxygen gas. In this reaction, H3PO4 decrease the rate of chemical reaction and this is called negative catalyst and this phenomena is negative catalysis. Now we discuss about the function of catalyst. Catalyst कैसे function करते हैं उसको हम देखते हैं with the help of a graph between energy and reaction path. Reaction path और energy के बीच हम ग्राफ देखते हैं जिससे हम catalyst के function को समझेंगे. When function of catalyst when reaction path and energy
एनर्जी और रिएक्शन पाथ के बीच ग्राफ देखते हैं तो हमें एक ग्राफ मिलता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाह रहा है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है in this reaction this is the activation energy इसको हमने माना E1। ये कैसा है? अनकैटलाइज पाथ, अनकैटलाइज विदाउट यूजिंग अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का यूज नहीं है, ये रिएक्शन पाथ है। बट व्हेन वी यूज अ कैटलिस्ट, जब हम कोई कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं तो रिएक्शन पाथ चेंज हो जाता है, ये प्रोडक्ट चेंज। तो रिएक्शन पाथ चेंज हुआ तो ये कौन सा? कैटलाइज पाथ। इन दिस path the activation energy also change, in this reaction when catalyst not used, uncatalyzed path is, but when we use catalyst the reaction path change and activation energy decreases. On this behalf we discuss some point. First, catalyst are specific in nature, कैटलिस्ट स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, वो पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए ही वर्क करेंगे। सेकंड, कैटलिस्ट नेवर चेंज द इक्विलिब्रियम को कभी भी चेंज नहीं करते हैं। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट नेवर शिफ्ट अ केमिकल इक्विलिब्रियम। Catalyst never change the enthalpy delta H entropy, internal energy delta U and Gibbs energy, ये कभी भी इसको चेंज नहीं करते हैं। Catalyst only increase the rate of reaction on the basis of the collision of particles, collision of molecules की स्पीड अप रिएक्शन बढ़ जाती है, कॉलिजन की इफेक्टिव कॉलिजन होता है, जिसकी वजह से क्या? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज एंड रिएक्शन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है, कॉलिजन इफेक्टिव कॉलिजन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें एक डिफरेंट पाथ मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पॉइजन्स एंड प्रमोटर्स आर दोज सब्सटेंस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं वो प्रमोटर्स कहलाते हैं। प्रमोटर एंड पॉइजन्स। पहले प्रमोटर को देखें हम। द सब्सटेंस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट की एक्टिविटी को जो बढ़ा देते हैं वो प्रमोटर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया इन हैबर प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? हैबर प्रोसेस। इन दिस रिएक्शन आयरन एक्ट एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है एंड small amount of molybdenum increase the activity of कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। तो molybdenum इसमें किसका वर्क कर रहा है? प्रमोटर्स का। प्रमोटर विच इंक्रीज द रेट एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं वो प्रमोटर कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे पॉइजन्स आर द सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, पॉइजन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड आर्सेनिक डिक्रीज द रेट ऑफ एक्टिविटी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द
टाइप ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के हम टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली कैटलिस्ट आर टू टाइप, homogeneous and heterogeneous, homogeneous and heterogeneous. First of all, homogeneous catalyst, type of catalyst में बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे types of catalyst. First, homogeneous catalyst. हमें नाम से पता चल रहा है, होम मतलब सेम, व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट प्रेजेंट इन अ सेम फेज. एग्जांपल, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इन प्रेजेंस ऑफ NO gas. In this reaction, sulfur dioxide, oxygen gas and NO gas present in a same phase. It means gaseous phase, gaseous phase, gaseous phase. Reactant and catalyst present in a same phase called homogeneous catalyst. Second example ले सकते हैं हम, hydrolysis of sucrose, C12H22O11 वाटर के साथ कंबाइन करा रहे हैं, लिक्विड फेज है, कैटलाइज किसकी प्रेजेंस में, H प्लस कहाँ से आएगा बेटा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है, तो इट डिकम्पोज C6H12O6 एक्वस प्लस C6H12O6 एक्स. अगर हम देखें कि कैटलिस्ट कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ पे हम इसका मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनियस कैटलिस्ट को देखेंगे. मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनियस कैटलिस्ट, एग्जांपल, यही एग्जांपल हम यूज करेंगे. मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनियस कैटलिस्ट, we take an example of SO2 gas combined with oxygen gas in presence of NO gas gives sulfur dioxide gas. सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होता है. इन दिस रिएक्शन NO एक्ट एज अ कैटालिस्ट. इसका स्टेप वाइज हम देखेंगे बेटा. स्टेप फर्स्ट क्या होगा, कैटालिस्ट NO गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म अ टेम्परेरी बॉन्ड. टेम्परेरी बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और NO2 गैस ये क्या है यहाँ पर, इंटरमीडिएट में टेम्परेरी बॉन्ड के साथ जो बनते हैं उनको इंटरमीडिएट बोलते हैं, जो चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट में. स्टेप सेकंड में क्या होगा बेटा, स्टेप सेकंड, NO गैस कंबाइन विद सल्फर डाइऑक्साइड गैस. सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ कंबाइन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, SO3 गैस प्लस NO गैस और सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड गैस हमें मिलेगी. नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस. तो हम क्या देख रहे हैं कि कैटालिस्ट फॉर्म अ इंटरमीडिएट विद टेम्परेरी बॉन्ड एंड आफ्टर कंप्लीशन द रिएक्शन कैटालिस्ट रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन. कैटालिस्ट नेवर कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन. कैटालिस्ट कभी भी केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं उनकी. नाउ वी डिस्कस अबाउट द हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट के बारे में देखते हैं बेटा. हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट when a reactant
when reactant and catalyst present in a different phase. Different phase means, like example, nitrogen gas and hydrogen gas form ammonia gas. अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करते हैं. इन दिस रिएक्शन आयरन एक्ट एज अ कैटलिस्ट विच प्रेजेंट इन अ सॉलिड फॉर्म. तो यहाँ पे हमने देखा रिएक्टेंट इन गैसियस फेज बट कैटलिस्ट सॉलिड फेज. इट मीन्स reactant and catalyst present in a different phase. This is the example of heterogeneous catalyst. Other examples ले सकते हैं हम. दूसरा example लेंगे, SO2 gas combined with oxygen gas to form sulfur trioxide. Sulfur trioxide का formation होता है. In this reaction V2O5 vanadium pentaoxide present in a solid phase. Solid phase में present है और ये रिएक्टेंट किस फेज में है? गैसेस फेज में. दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट प्रेजेंट इन अ डिफरेंट फेज.